So just a minute. So in that way we make a one index, और उस index में रहता है जैसे again coming to the mall, हम लोग ने 10 लिए थे, 10 goods list of goods लिए थे from many other things. Same way we are going to take here. In this consist Sensex में होते हैं 30 stocks from different sectors लिए जाते हैं, and based on that 30 stocks वो Sensex का value रहता है, जो आप recently you must be see viewing it as a near to 40,000 or 39,000 it has been trading now. So वो aggregate value of only branded was वो जैसे branded stocks का we take, same way here also only a selected stocks are taken from the stock market and their benchmarks and or we can say average has been made. This stock market उसका उस average को बोला जाता है सेंसेक्स, वो जो BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए होता है. ये कभी स्टार्ट हुआ था? It was in 1986, लेकिन it is a very old post it came to electronic platform in 1986. It was when it started वो value 100 लेके लिया गया था, which is today it is near to 40,000. Sectorial indices रहता है, मतलब again I told you the in this what it comes is a sectorial index, means clothing रहता है, kitchen रहता है, electronic रहता है, वैसे इसके अंदर auto रहता है, banking sector रहता है, oil and gas sector रहता है and many other things. Same way with the National Stock Exchange. National Stock Exchange भी मुंबई में ही है, and it consists the Bombay Stock Exchange. You have a first 30 companies, जो top companies, overall company which has been listed on the Bombay Stock Exchange. Out of that, there are 30 companies which has been taken to make an index of Sensex. वैसे ही there are 50 companies which comes in the National Stock Exchange. मतलब top 50 company of National Stock Exchange has been taken out from that, and उसके basis पे एक average बनाया जाता है जिसको National Stock Exchange बोलते हैं या फिर Nifty बोलते हैं. You must have heard Nifty near to 11,000, 11,300. This is what it is, Nifty. So in order to trade in this, there are many different stock exchanges over the world also. There are New York Stock Exchange, Tokyo Stock Exchange, Shanghai, Hong Kong, London, and Toronto, Bombay Stock Exchange. This was just a part. हाँ, अभी काम पे आते हैं. What is basically stock market? I hope people are clear with the stock market. What is the stock exchange? Okay. So how to deal with अपने लिए, what is the benefit for us in the stock market is how to get us shares in the stock market, how to earn the money and all. So in order to earn a money, जैसे now again take an example similar to banking sector. Now if you want to send a money to certain people or you want to buy certain things online, or you have to simple, you have to, if you want to transfer a certain money to certain people online जो दूर रहते, so basic is you open a bank account, you put your money there, the money has been transferred to the other person account through electronic mode. That is a simple way. In this same way, in order to get the ownership of that company, what we have to do, we have to open a demat account. Demat account, dematerialize account. Dematerialize means क्या? पहले के टाइम पे whenever you used to, we all have seen कि FD हम लोग जब भी करवाते हैं, we get a this certificate, FD certificate we get. In same way during post before 2000 we used to get same share certificate sort of things. उस शेयर सर्टिफिकेट में भी नेम यूज टू कम, किसने ट्रांसफर किया, कितना ट्रांसफर किया, ये सब होता था. एंड वंस इट हैज बीन ट्रांसफर, लेट्स अज्यूम इफ ए हैज परचेज दिस एंड नाउ ए वांट टू सेल दिस टू बी, ये चीज को ऑथराइज के पास जाके इसको चेंज करवाना पड़ता था. जैसे सिंपल, आज कोई रियल एस्टेट में हम लोग लेते हैं तो एक बायर से दूसरे बायर सीधा नहीं बेच सकता. यू हैव टू गो टू द रजिस्टर टू ट्रांसफर द ओनरशिप और फिर जाके आपके पास आता है. सेम वे शेयर्स में होता है, यू हैव टू गो टू द रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार नाम चेंज करके देगा एंड देन इट विल बी कमिंग इनटू योर अकाउंट. दिस इज द बेसिकली. तो ये पहले होता था, दिस सिस्टम यूज्ड टू गेट 10 to 12 days लेते थे पहले इन ऑर्डर टू ट्रांसफर सच ओनरशिप एंड देन, बट पोस्ट गेटिंग द इलेक्ट्रॉनिक मोड पे आ गया टेक्नोलॉजी की मदद से. नाउ दिस टेक जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ मिनट
to get a transfer, I mean to trade. And once that trade has been done, payment has been done, within next day, this demat account, this shares will be shown in your demat account. Demat account मतलब क्या होता है? पहले जैसे I told you, it used to take very difficult to maintain the share certificate, maintain करना पड़ता था, रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता था, मतलब जितना कमाया नहीं उतना तो उसके आने जाने में खर्चा हो जाता. This was before 90 to before 2000 it was like this. But post this demat came. Demat में क्या होता है? The share number, जो शेयर्स थे फिजिकल फॉर्म में थे, वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में चले गए. कैसे इलेक्ट्रॉनिक मोड? पहले हम सब लोग कैश ही रखते थे, रोकड़ा रखते थे घर में. देन लेटर ऑन द मनी गॉट ट्रांसफर इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. आज इलेक्ट्रॉनिक मनी वी हैव सीन मैनी वेयर. डेबिट कार्ड से हम लोग मनी ट्रांसफर करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक मोड पे अपने बैंक अकाउंट में दिखता है, दैट इज अ इलेक्ट्रॉनिक मनी. सेम वे शेयर्स भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिमेट अकाउंट में आ जाते हैं. डिमेट अकाउंट मतलब बेसिकली जैसे अपना सेविंग करंट अकाउंट बैंक में होता है, वैसे ही डिमेट अकाउंट मतलब अकाउंट टू कीप फाइनेंशियल सिक्योरिटीज. सिंपल. और रजिस्टर कौन है? जैसे आई टोल्ड यू, इन ऑर्डर टू रजिस्टर रियल एस्टेट प्रॉपर्टी वी यूज टू गो टू certain registers and get that transfer. In India, for transfer of this register means what? Now see, each company maintain a register name of a shareholders कि कितने shareholder. क्यों? Because whenever they get a dividend मतलब profit जब भी share करने का time आएगा, तो based on that register they share the profit. So वो रजिस्टर में कितने नाम है, उनके अकाउंट में पैसा जाएगा. इट वाज लाइक दैट. तो ये रजिस्टर मेंटेन कौन करता है? तो दिस रजिस्टर इज बीन मेंटेन बाय CDSL एंड NSDL. दिस आर द रजिस्टर ऑफ इंडिया, जहाँ पे ये सब चीज रिकॉर्ड की जाती है डेली बेसिस पे. डेली बेसिस पे थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन हम लोग जो करते हैं, इट इज बीन रिकॉर्डेड इन दिस CDSL एंड NSDL. This is sort of a electronic locker for us, जहाँ पे ये हर रोज चेंज होता रहता है, कितना किसका कितना है. फिर डायरेक्टली वी कैन नॉट. हाउ टू ओपन अ डिमेट अकाउंट? डिमेट अकाउंट कैसे ओपन होता है? जैसे कि इनके एजेंट्स रहते हैं, इनके एजेंसी लेते हैं, एजेंट ब्रोकर्स रहते हैं. So what happens, there are angel broking platform, Motilal Oswal platform. This platform have a tie-up with this NSDL and CDSL under the guidance of SEBI. Abhi, there are many questions you must be coming. What is a SEBI? What is NSDL? What is CDSL? What is a broker and all? SEBI is a regulating body. जैसे कि बैंकिंग सिस्टम में RBI होता है, कि RBI इज अ रेगुलेटरिंग बॉडी, कि लॉ चल रहा है कि नहीं, किसी ने फ्रॉड किया है कि नहीं. दिस इज बीन चेक बाय द RBI. सो वैसे ही सिक्योरिटी मार्केट में कोई फ्रॉड नहीं करता है, कोई क्या कर रहा है, वॉट एवर ईच एंड एवरीथिंग इज बीन नोटिस अंडर द गाइडेंस ऑफ SEBI, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है. दिस इज अ रेगुलेटरी बॉडी, ये चेक करने के लिए. नाउ इट कम्स टू NSDL. सारे के सारे शेयर्स इज बीन given to सारे के सारे शेयर्स इज बीन गिवन टू NSDL और CDSL के पास जाते हैं, वहाँ पे वो लोग रजिस्टर बनाते हैं एंड देन इट इज बीन ट्रांसफर टू द पर्सन अकाउंट. फिर ब्रोकर लोग क्या करते हैं? ब्रोकर लोग टाई अप करते हैं. ब्रोकर लोग वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देते हैं जहाँ पे यू कैन बाई एंड सेल विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम. नाउ एज आई टोल्ड यू, what is CDSL and NSDL? It is a register. But first, physically, we used to go there. We used to shout and get the share in our name. And अभी ऐसा नहीं होता. अभी डिजिटल लॉकर रहता है, जैसे बैंक में सेविंग्स अकाउंट एंड ऑल रहता है. ये सेम चीज डिजिटल लॉकर हम लोग को ब्रोकिंग देते हैं, बैंक्स देते हैं और ब्रोकर्स देते हैं अपने को, डीमैट अकाउंट देते हैं. जैसे एंजल ब्रोकिंग का एक अकाउंट होता है, मोतीलाल ओसवाल इज बीन प्रोवाइडिंग द सेम अकाउंट. सो ये ऐसे प्रोवाइड करते हैं. जहाँ पे नाउ जस्ट 2 minutes I will tell you how the trading system works, then we will go to the different types of product. See, whenever the person places the order, it's recollect this or parallelize this with the banking system में जो हम लोग saving account. I hope people are been aware about the banking system, so they can connect this to very well. जब banking system में when we put a money and then the money is with the bank, same way broker का जो angel broking में account let's assume हम लोग ने open करवाया, या फिर मोतीलाल ओसवाल में ओपन करवाया, या फिर NJ वेल्थ में ओपन करवाया अकाउंट. यहाँ पे again I'm telling a disclaimer, this is none of the account, I'm connected to none of this broker, this is just an example.
whenever the हम लोग ये ब्रोकर से शेयर करते हैं, पैसा देते हैं, तो यहाँ पे they open our account. Once the account is been open, we get a shares from the we buy the shares. ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पे हम लोग को वो प्लेटफॉर्म दिया जाता है जहाँ पे हम लोग बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं. सेम वे जहाँ पे हम लोग अमेजोन के एक प्लेटफॉर्म पे एक क्लिक पे हम लोग वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं मार्केट के. सेम वे जो सेबी ने पूरा बोर्ड बनाया है और एनएसडीएल के रजिस्ट्रार पे जो है वो फ्री फ्लोट रहते हैं, वो फ्री परचेज और सेल होते रहते हैं, मतलब एक मार्केट, लिक्विड मार्केट रहता है वहाँ पे. ये होते हैं वहाँ से विद दिस ब्रोकर एक बार अकाउंट ओपन करवाने के बाद you can place the order, और जैसे ही ऑर्डर आप लोग प्लेस करते हो, the number of shares get transferred to your account next day, and the payment money is being deducted from this account. And then this money is being अभी angel booking, and what they do, they take the list of their customer who bought certain things. They go to NSDL and they tell that this is my client who have purchased and this is a sale. NSDL cross check with this transaction valid? Once it is done, it is given to SEBI, and SEBI regulates it, and this way the transaction is settled. ये same होता है जहाँ पे once we put a check in a bank, the money, the bank authorize the signature, then bank takes this check to the head office of the bank. जैसे कि let's take an example. If you deposit a check in a SBI, SBI will take all the checks in that day, number of payment जो लेने का है. They will, from now, one SBI guy will be going to the RBI, one from Bank of Baroda will be going, one from Canara Bank will be going. वहाँ पे जाके they will cross check. Now SBI will tell I want to take 1,700 crores from Bank of Baroda. So Bank of Baroda will be also saying I'm supposed to pay. In this way, RBI will say yes, both the entry is meeting and the account will be settled. Then post that your account, you can see the reflection of that amount is being transferred to you. ये बेसिकली होता है सीडीएसएल और डीमैट अकाउंट ओपन करवाने के बाद ये सीडीएसएल एनएसडीएल काम करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ सेबी. नाउ टू कम टू द इंटरेस्टिंग पार्ट, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स. मतलब स्टॉक मार्केट में ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स रहते हैं, क्या रहता है स्टॉक मार्केट में. जस्ट अ मिनट. स्टॉक मार्केट में कौन से प्रोडक्ट्स रहते हैं, टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स में. स्टॉक मार्केट अगेन आई टोल्ड यू इज अ मार्केट जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इज बीइंग सोल्ड आउट. द फर्स्ट इज अ स्टॉक मार्केट. स्टॉक हो रहता है. स्टॉक मतलब क्या, कोई कंपनी का स्टॉक, इक्विटी शेयर्स जो रहते हैं, जो कंपनी ने मार्केट पे लेके आए थे वो रहते हैं, तो वो एक ट्रेड करते हैं. उसके बाद बॉन्ड रहता है. बॉन्ड मतलब क्या रहता है, बॉन्ड मीन्स डेट वैल्यू. नाउ सर्टेन कंपनी, जैसे आई टोल्ड यू इन द इंट्रोडक्शन ऑल्सो, there are companies who don't want to take a liability of banking sector, मतलब who don't want to take a liability of interest rate. मतलब interest rate का liability, why I am saying, because whether you get a income or not, whether your business run or no, you are bound to pay certain interest if you go for a loan. So वो अवॉइड करने के लिए कंपनी कम विद द स्टॉक मार्केट जहाँ पे वो थोड़ा पोर्शन ऑफ द कंपनी बेच देते हैं एंड दे गेट अ मनी. जबकि बॉन्ड में क्या होता है कि बॉन्ड में कंपनी को पता है कि दे आर वेरी वेल able to, they will be able to manage this and they don't want to dilute their company stake. उन लोग को वो स्टेक डाइल्यूट नहीं किया. डाइल्यूट मतलब वो उनको वो स्टेक, उनको वो कंपनी पे अपना कमांडिंग पोजीशन रखना है. सो व्हाट दे विल डू, दे विल कम विद अ बॉन्ड. बॉन्ड मींस अ सॉर्ट ऑफ लोन रहता है जहाँ पे दे कम विद अ सर्टिफिकेट एंड दे टेल टू द कॉमन पीपल. ये सब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के फ्लोर पे होता है. They come with the bond, they say to the normal people that we are going to pay you some percent of interest, you give us some money. Now this, the value of the bonds are been in crore. Recently एक अदानी का आया था जिन्होंने मिनिमम साइज ऑफ बॉन्ड रखी थी $2 लाख था. वो इंटरनेशनल लेवल पे था, पूरा नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे था. सो इन बॉन्ड नेचुरली जनरली नॉर्मल पीपल और ए रिटेलर डजंट इन्वेस्ट. सब बड़े बड़े फर्म्स इन्वेस्ट करते हैं. मतलब जब भी ऐसे बॉन्ड आते हैं ना, इफ नाउ टेक एग्जांपल, इफ अदानी इज कमिंग विद अ बॉन्ड ना, LIC विल गो एंड बाय, टाटा विल गो एंड बाय, Reliance will go and buy. We retailers hardly go and buy that thing because the amount is so huge.
वैसे रहता है। दूसरा रहता है ETF, रहता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जैसे मैंने बताया कि निफ्टी एक एक बास्केट है जिसके अंदर टॉप 30 या टॉप 50 स्टॉक्स रहते हैं। निफ्टी में टॉप 50 स्टॉक्स रहते हैं जितने भी स्टॉक मार्केट पे लिस्टेड हुए उनके। सो नाउ वो जो लिस्टेड स्टॉक मार्केट रहते हैं उनका एक पोर्टफोलियो बनता है। नाउ सी व्हेन एवर यू कम टू बाय अ रिलायंस और समथिंग, देयर इज ऑलवेज अ फियर कि रिलायंस में कभी यू टर्न हो रहा है, कभी कुछ प्राइस का हो गया, कभी जैसे उनका बिजनेस इज इन ऑयल, कल उठ के इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया तो ऑयल सेक्टर गिर जाएगा एंड दैट वुड लीड टू अ फॉल ऑफ रिलायंस। सो हाउ टू डाइवर्सिफाइड योर इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ पे वो लोग ETF में करते हैं। ETF इज बेसिकली जो एक्सचेंज पे ट्रेडेड रहता है। जैसे कि वी कैन से कि निफ्टी का ETF रहता है। निफ्टी में नॉर्मली परचेज अगर पब्लिक करने जाती है तो इट यू हैव टू पे 11,000 के आसपास रहता है। बट इफ उसका ETF में करने का है तो इट इज समथिंग नियर टू 99 रुपीज टू 100 रुपीज रहता है। सो ETF इज लाइक अ बास्केट। वो पूरा बास्केट को वी कैन बाय एंड सेल। सो मीन्स उसकी मदद से विद द हेल्प ऑफ ETF our risk to the portfolio will be very less. प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स भी सॉर्ट ऑफ शेयर्स ही रहते हैं जो कंपनी लिस्टिंग करती है। एंड इन दैट प्रेफरेंस शेयर्स में क्या रहता है, एक certain amount of interest रहता है like a bond, but along with that there is a chances that you can have a certain amount of a profit sharing also basically। that to depend upon the company जब भी वो listing करते समय कौन से terms and condition पे they are listing। otherwise they have a preference shares with a fixed amount of interest per annum। we also trade on a currency। stock market पे we can also trade on a currency। different products को different currency, जैसे कि now if you want to go to certain country and get that currency, you can get that currency from the stock market। MCX as I told you in the very second slide that India में 3 stock exchange are very nationalized stock exchange। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड MCX। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मोस्टली फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ट्रेड करती है। फाइनेंशियल सिक्योरिटीज मतलब क्या, स्टॉक मार्केट, बॉन्ड, ETF, प्रेफरेंस शेयर, करेंसी, IPO, FPO। जबकि MCX में क्या ट्रेड करता है, MCX में गोल्ड है, ऑयल है, इलेक्ट्रिसिटी है एंड मीन्स कमोडिटी जो हम लोग यूज करते हैं, दाल है, चावल है, मूंग है, आई मीन हल्दी है, एंड दिस ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर बीन ट्रेडेड ऑन द MCX स्टॉक मार्केट। मतलब जहाँ पे BSE NSE is used is a for a trading of financial things, MCX is used for trading on a commodity। Now we come to IPO। IPO होता क्या है, the movement company decide to raise a capital। as I told you, Tata Motors want to raise a capital, so they will directly come to the people telling see this is what I want to uh, I want a money for, I am starting this new project और मेरे को money इसके लिए चाहिए। So when they come with the first time diluting their stake, उसको बोलते हैं initial public offering जो IPO बोला जाता है। Recently you must have heard in last 2 months around 8 to 9 IPOs have been hit to the market। out of that 1 or 2 ही successful रहते हैं and other were heavily मतलब नेगेटिव लिस्टिंग हुआ था। what is FPO? FPO मतलब जो कंपनी, लेट्स अगेन टेक एग्जांपल ऑफ टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स ने 100 रुपीज का पहला कंपनी था, उसने 30 रुपीज का मार्केट में IPO लेके आया। मतलब अभी कंपनी में 60% ओनरशिप टाटा का है, 30% 70% ओनरशिप टाटा का है, 30% ओनरशिप पब्लिक का था। अभी टाटा को लगता है नहीं मेरे को और चाहिए मनी टू एक्सपांड माई बिजनेस एंड आई डोंट वांट टू गो फॉर एनी लोन एंड ऑल। तो वो क्या करेगा, अपना 30% जो दिया था ना अपने हाथ में, फिर भी 70% है, 70% में से और 10% वो कम करके मार्केट में लेके आएगा। अभी उसका क्या होगा स्टेक, 60% will be he Tata's ownership, the chairman of Ratan Tata and all, and 40% will be the public ownership। so same share अगर दूसरी बार मार्केट में आ रहा है with the diluting, तो उसको करते हैं FPO। तो now market's expectation, I hope, just a minute, कुछ डाउट है क्या यहाँ पे, प्लीज लेट मी नो। guys,
Any doubt? Okay, let's go. Okay, let's go. uh, Market sentiments. See, this was the basic stock market जो I told you before कि कैसे we have to open a demat account, and with the help of demat account only we can buy the shares and sell the shares. Now this market sentiments, जो market का share का price है, this keeps on changing on a different level. मतलब different अलग अलग method के कारण वो change होता रहता है. Prices of a stock market. Take a stock of Reliance. कल उठ के पता चला कि oil prices are no more useful. The इंडस्ट्री सारे व्हीकल सेक्टर्स आर गोइंग ऑन इलेक्ट्रोफाइंग. तो तभी क्या होगा, जब भी सारी इंडस्ट्रीज आर गोइंग ऑन इलेक्ट्रोफाइंग, ऑयल का डिमांड कम हो जाएगा, रिलायंस गिरना शुरू हो जाएगा. सो ऐसे रिलायंस गिरना शुरू होगा तो आज 2000 का शेयर है, वो कल उठ के 1000 हो जाएगा, 500 हो जाएगा. वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. दिस इज जस्ट कि न्यूज के बेसिस. सो the way oil price is the रीजन ऑफ अ रिलायंस. ऑयल प्राइस गिर जाएगा तो ये गिर जाएगा. वैसे सेंटिमेंट्स, मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या है अभी पोस्ट कोविड. दिस इज समथिंग वी डिड अ रिसर्च ऑन. पोस्ट कोविड वी हैव सीन अ के शेप रिकवरी इन द इंडियन इकोनॉमी. के शेप रिकवरी क्या रहता है, कोविड के पहले सारी इंडस्ट्रीज थी, सारी इंडस्ट्रीज वर गोइंग वेरी गुड. पोस्ट कोविड क्या हो गया, सर्टन इंडस्ट्री के शेप रिकवरी मतलब क्या होता है, कुछ इंडस्ट्री हमेशा के लिए बंद हो जाएगी और कुछ इतनी हाइट पे जाएगी कि वी कैन नॉट इमेजिन. विद एग्जांपल आई कैन से, कोविड से पहले पूरा सब कुछ ठीक था. जैसे कोविड आया, सडनली ड्यू टू द कोविड एंड दैट वायरस थिंग, people were afraid to touch even the newspaper. So now what people, even people were afraid of using the papers and all. So suddenly what happened, government came with a law कि पेपर इंडस्ट्री, पेपर जो पेपर यूज रहता है इन गवर्नमेंट सेक्टर, वो सारे बैन कर दिए. सो नाउ व्हाट हैपेंड, जितनी भी इंडस्ट्री बिकॉज विच वाज बेस्ड ऑन द पेपर इज नाउ कंप्लीटली शट डाउन, ऑन एज ऑफ गेटिंग शटिंग डाउन, क्योंकि उनका बिजनेस अभी बंद कर दिया. अदर साइड दूसरी जो इंडस्ट्री थी कोविड से पहले, आईटी सेक्टर थे. अभी जैसे वी आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी ऑफ जूम, पहले जूम का इतना कोई वैल्यू नहीं था. पीपल यूज टू गो टू फिजिकल एंड अटेंड द सेमिनार एंड ऑल. बट आफ्टर दिस कोविड आईटी सेक्टर का डिमांड बढ़ा है. जैसे कि यू आर यूजिंग दिस इंटरनेट, यू आर यूजिंग दिस इलेक्ट्रिसिटी, यू आर यूजिंग दिस जूम आईटी स्टॉक्स एंड ऑल. सो आईटी का डिमांड बढ़ा. सो दिस इज कॉल्ड अ के शेप रिकवरी. के शेप क्या होता है, मतलब कि एक इंडस्ट्री, एक आईटी सेक्टर है, एक जैसे कि एक आईटी सेक्टर इट विल गो हाई एकदम, एंड एक सेक्टर विल गो कंप्लीटली डाउन टूवर्ड, जिसका शायद से इन फ्यूचर यू विल सी दैट दिस सेक्टर यूज टू एक्सिट, वैसा हो जाएगा. पोस्ट दैट कोविड हैज मेड इंडिया सेल्फ रिलायंट. पहले वी used to be used to import a huge chemical from China. China was a major part for our medical एंड अदर केमिकल के लिए हम लोग का सबसे बड़ा इम्पोर्टर था, चाइना से आता था. नाउ क्या हो गया, व्हेन सिंस वी स्टार्टेड आवर ओन इंडस्ट्री, वी आर नाउ मेकिंग दैट. सो वो दैट इज लीडिंग टू द, वो जो फॉरेक्स में हम लोग को पेमेंट करना पड़ता था, वो कर्जा कम हो रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है. करंट अकाउंट डेफिसिट मींस क्या, you are selling 100 rupees thing, you are bringing 206, so current account deficit is of 100. 100 का बेचा 200 का मंगाया, तो मतलब 100 रुपए का कर्जा चढ़ गया था. so वो कर्जा अपना से कम हो रहा है. क्यों, क्योंकि जितनी भी चीज हम लोग बाहर से पहले मंगाते थे, we started manufacturing now in India. when it comes to the PPE kits, when we comes to the, forget about PPE kits and all, that is basically a chemical, in chemical sectors, in medical sector. पहले मेडिसिन में बनाने के लिए बहुत सारे रॉ मटेरियल वी यूज टू गेट इट फ्रॉम द चाइना. नाउ इंडिया स्टार्टेड द सेम, एंड इनफैक्ट वी आर नाउ सप्लाइंग टू द आउटसाइड. सो दिस reduces the debt from our head. And due to the COVID facility, medical facility, small scale and chemical infrastructure, agro supply chain
is created at war footing. अभी क्या हो गया है, कोविड के कारण क्या हो गया है कि मेडिकल फैसिलिटी है, स्मॉल स्केल केमिकल है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है. नाउ यू विल से हाउ द इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री इज बीन क्रिएटेड due to COVID at a war footing. Infrastructure is like, see, in India we were assumed to have a infrastructure long back, but वो नहीं हो पाया था due to certain thing. And see, when you are going on a such a scale, now let's assume, take a something, you are producing, you are manufacturing certain chemical, and you have to supply that chemical from A place to B place within a stipulated time, limited time. If the infrastructure and road is been developed nahi hai, so you cannot do that. So in order to set up that thing, in order to do that, infrastructure ki zarurat hai, roads ki zarurat hai, so it has been built. Agro supply chain, you must have heard ki due to COVID, huge amount of agro was been distributed in the market. मतलब हम लोग कितना भी go through the news के भाई बहुत सारे issues है, but we knew that in the month of April कितना भी lockdown था, we never had a single issue of having the food grains or a grocery foods or a milk supply. It was been supplied at a normal pace और सबका demand efficiently हो रहा था without increasing a price. This is what a chain, agro supply chain मतलब क्या, एक चीज एग्रो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने का इन अ प्रॉपर वे जहाँ पे वो बिगड़े नहीं एंड प्रॉपर टू द एंड यूजर जा सके. ये on a historical, अभी recently based on historical reforms गवर्नमेंट ने किया है लेबर एग्रो एजुकेशनल एंड लैंड एक्विजिशन पे. In this land acquisition and all, labor, see, whenever come to the sector of job employment, India में till now there is around 65% labor जो इंफ्रा और एग्रो में, मतलब एग्रीकल्चर खेती करने वाले और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो रोड ब्रिजेस बनाने वाले जो मजदूर है, इट इंक्लूड 65% ऑफ द इंडियन वर्किंग पॉपुलेशन. अभी 65% इतनी है, तो उसमें अगर चेंज लेके आए हैं जो एग्रो बेसिस पे, एजुकेशनल बेसिस पे, लैंड एक्विजिशन, मतलब अलग अलग रूल्स चेंज होते थे. पहले जो बेनिफिट were not able to transfer to them has now been transferred to them. So as per the report from the international organization, it is presumed based on this reform 1.5 lakh crore rupees will be having to the lower bottom of the pyramid. लोअर बॉटम ऑफ द पिरामिड मतलब क्या, जो पिरामिड के नीचे में जो मजदूर है, जो एग्रीकल्चर पर वाले, दे विल बी हैविंग 1.5 लाख करोड़ ऑफ द परचेसिंग पावर. एंड 1.5 करोड़ के हाथ में एक बार परचेसिंग पावर जाएगा, दिस विल इंक्रीज द डिमांड ऑफ एवरीथिंग विच विल लीड टू द boost of agriculture in the auto industry, agro industries and many other. So now negative sentiments kya hai? There has been certain negative sentiments as the sort of scam news which has been running in the market. Can expect the scam news can hit the market. Implementation government ने बहुत सारी implement की है, but wrong time पे की है या we don't know, but it will take a time. और वो जब तक properly नहीं होगा, there is a North Frontier zone of India is at a war zone. Worsening of a banking sector. Banking sector में the worst thing is people are given a loan in name of small scale industries और छोटे छोटे उद्योग के नाम पे छोटा छोटा लोन दिया जाता है. And fail, if they fail to pay, this will lead to a worsening of a banking sector और वो गिरेगा, जिसके कारण भी ये मेजर बैंकिंग सेक्टर में अभी इन्वेस्ट करने के लायक नहीं है. So this will be the loan. Now coming to the, this was first we learn about what is a stock market, फिर we learn what is a sentiment, आगे मार्केट कैसा लग रहा है, कि पॉजिटिव लग रहा है कि नेगेटिव. इन शॉर्ट, फॉर अ टाइम बीइंग मार्केट 2 to 3 months या 6 month के लिए इट इज बिन कंजर्वेटिव. पोस्ट दैट एक बार ये जो रिफॉर्म्स जो अभी किए गए एक बार मार्केट पे ऑन पेपर आना चालू हो जाएंगे, वी कैन एक्सपेक्ट मेकिंग श्योर कि और कोई ऐसा वायरस ना आए, then we can say that market will keep on running based on this reforms and based on this. So now when we come to know the market क्या है, market का future क्या है, what is how to do in a market, now we come to the investment कि ये market में ये कैसे पैसा डाले और कैसे अपना फायदा हो सके. तो when it comes to that we do the thumb rule for investment. इन्वेस्टमेंट में क्या रहता है फैक्टर कंसिडरिंग फॉर प्लानिंग क्या रहता है
इन्फ्लेशन रहता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग रहता है एंड रिस्क एंड अनसर्टेनिटी रहता है। ये 3 फैक्टर के बेसिस पे मोस्टली फाइनेंशियल प्लानिंग होता है। कॉस्ट ऑफ अभी क्या होता है ना, इन इंडिया, लेट्स टेक इन मुंबई आल्सो, many people who are with a salary of more than 50 to 60K in a month, वो लोग क्या करते हैं, even though there are certain chartered accountants and my friends who getting a job in a very reputed companies and all, they have a very good payment, but what they do, instead of putting the money into the finance into the investment perspective, वो लोग डाल देते ये पैसा रियल एस्टेट में एंड ऑल दे परचेज। इश्यू क्या होता है, the issue is like your huge amount of your present salary वो ब्लॉक हो जाता है और वो लॉन्ग टर्म के लिए ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण we are not able to think beyond the job and we have to continue for the job on a consistent basis पे। This is basically job के लिए मैं I just told you। अभी इन्फ्लेशन, इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, इन्फ्लेशन क्या होता है, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या, द रीजन फॉर हैविंग अ इन्वेस्टमेंट इज टू मैच द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है, लेट्स से कि आज से 10 साल पहले व्हेन वी यूज्ड टू गो इन अ ऑटो, वी यूज्ड टू पे फॉर द सेम डिस्टेंस, वी यूज्ड टू पे 9 रुपीज समथिंग, फिर 11 रुपीज हुए, फिर 13 हुआ, 15 हुआ, नाउ इट इज 18 रुपीज है। जो डिस्टेंस हम लोग पहले 9 रुपीज में कवर करते थे, आज वही चीज को हम लोग को सेम डिस्टेंस करने के लिए सेम ऑटो रिक्शा में वी आर पेइंग 18 रुपीज, मतलब डबल। मीन्स पहले जो इक्लेस हम लोग बहुत टाइम देखते हैं कि पहले पार्ले जी का बिस्किट एक बड़ा आता था, 4 रुपीज आता था एंड इट केम टू 5 रुपीज। अभी तो वो लोग ने पैसा वही रखा है लेकिन क्वांटिटी कम कर दी। तो इन्फ्लेशन का मतलब क्या, सेम मनी में कम क्वांटिटी मिलना, इन वेरी बेसिक सी। तो जस्ट अज्यूम करो इन लास्ट दिस 10 years द एवरेज इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया, मतलब हर ईयर आपके जो खर्चे थे, आपके जो expenditure थे, let's say कि your expenditure for the month is 15,000, I'm telling from the perspective of Mumbai, if 15,000 to 20,000, next year it will increase by 20,000 plus 6.5 to 7% per month, उतना बढ़ जाएगा, क्योंकि वो वही एंजॉयमेंट, वही आपको सेम लेने के लिए 6.5 रुपीज ज्यादा स्पेंड करने पड़ेंगे उसके लिए। तो उस इन्फ्लेशन को टैकल, क्योंकि आपकी सैलरी कुछ 6.5, बहुत लोगों का हम लोग देखते हैं कि सैलरी 2% बढ़ता है, 1% बढ़ता है, इट इज नॉट गोइंग टू मैच। सो हाउ टू मैच दिस 6% इन्फ्लेशन, ये बढ़ता ही रहता है, हाउ टू मैच दिस इन्फ्लेशन, तो पुट योर मनी इन अ प्रॉपर इन्वेस्टमेंट जहाँ पे यू गेट अ इक्वल अमाउंट ऑफ रिटर्न, जहाँ पे ये इन्फ्लेशन को टैकल कर सके। दिस इज इन्फ्लेशन इज दिस। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होता है, पर डे पर पर्सन को एक सिटी स्टेट में रहने के लिए कितना, अगर पर्सन इज स्टेइंग इन मुंबई, इफ इज हैविंग अ रेंटेड हाउस एंड he is staying in Mumbai, he need minimum to 20 to 35,000 rupees per month to survive in Mumbai, in which he is having no luxury, no automobiles, no movie or something. 20,000 to 35,000 basically goes, I'm assuming that if that guy is living in a guy or a person is living in a rented house, तो उसका 20 से 35,000 based on the area वो उसमें ही चला जाता है। This is not a luxury, basic necessity में क्लोथिंग है, फूड है, इलेक्ट्रिसिटी है, रेंट है, उसमें ही चला जाता है बेसिक ट्रैवलिंग में। तो दिस इज अ कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये कॉस्ट ऑफ लिविंग हर रोज, ये जो आज 20,000 में हो रहा है, 5 साल के बाद शायद से 20,000 नहीं, मिनिमम 20,000 आज जो हो रहा है, 5 साल के बाद शायद से मिनिमम 25,000 चाहिए रहेंगे या फिर 30,000 चाहिए रहेंगे। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन साइकिल। अभी रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी क्या है, एज वी ऑल नो, मैंने यहाँ पे इमेज भी इसलिए डाला नहीं है, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, जो चीज हम लोग को पता ही नहीं है उसका क्या इमेज डालने का, इट इज सॉर्ट ऑफ लाइक दिस। रिस्क एंड अनसर्टेनिटी मतलब क्या रहता है कि अभी मैंने बताया कि 20,000 35,000 यू रिक्वायर्ड फॉर द डे, वो गलती से हेल्थ इश्यू हो गया, एडमिट होना पड़ा, व्हाट इज द कॉस्ट यू हैव टू पे। Now in Mumbai city we have started coming with a nuclear family concept, where जहाँ पे it is people once start job, they take another house, they start living that, तो वहाँ पे वो लोग रहना चालू करते हैं। न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट आ गया हुआ है। कंपटीशन रहता है, कंपटीशन के कारण कहीं पे यू आर बीन थ्रोन आउट ऑफ द जॉब एंड ऑल, जॉब भी एक है।
So in order to meet this we should invest. क्या चीज को फैक्टर को देखने के लिए कि इन्फ्लेशन है, कॉस्ट ऑफ लिविंग। इन्फ्लेशन मतलब सिंपल है कि आज हम लोग जो पैसा खर्चा करते हैं, आज जो हम लोग एंजॉयमेंट बेनिफिट करते हैं, अगर वही बेनिफिट को हम लोग को सेम 5 साल तक एंजॉय करना है तो उसका खर्चा इतना नहीं लगेगा, उसका ज्यादा लगेगा, और वो आपको जॉब से उतना इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। सो यू हैव टू इन्वेस्ट इन दैट, जहाँ पे इन फ्यूचर यू गेट दैट रिटर्न टू मीट योर डेली डिमांड्स एंड टू लिव अ बेटर एंड स्टैंडर्ड लाइफ। अभी दिस इज सम first there is I used to get many questions when I used to meet my families and all कि जॉब स्टार्टिंग होने के बाद साथ ही वो लोग ने सीधा हाउसिंग लोन ले लिया। नाउ why I'm telling not to take a housing loan or to first save certain accumulate, एक corpus accumulate करो पहले, फिर जाके घर लो। The reason is first thing, अगर आप 30 लाख का लोन लेते हो ना सिंपल वे में, 8% 9% पे लेते हो 10 साल के लिए, ट्रस्ट मी 10 साल के बाद आप लोग 30 लाख का 35 लाख या 10 उतना नहीं, इट नियर टू 65 लाख प्लस आप उसका चुकाते हो। मतलब आप एक वही प्राइस में डबल घर ले सकते हो, जबकि आप एक ही घर मिलता है। सेकेंड थिंग क्या होती है, यू कंटिन्यूस यू हैव टू बी इन दैट विद अ फियर कि अगर ये जॉब छूट जाएगा तो ये ईएमआई कैसे सकता है। इसलिए वी आर ऑलवेज टेलिंग कि फर्स्ट यू इन्वेस्ट इन सर्टन थिंग, एक कॉर्पस खड़ा करो, आपकी बेसिक नीड कंप्लीट करो, और फिर थिंक फॉर अ लग्जरी पार्ट। जैसे कि दिस इज अ बेसिक एग्जांपल ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ सेविंग्स। जिन्होंने 2008 में स्टार्ट किया रहेगा मार्केट क्रैश होने के बाद, देयर इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड में। जिन जिन लोगों ने 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था, निफ्टी वेंट टू 2686 के आसपास चला गया था, और अभी निफ्टी कुछ 11500 के आसपास है कुछ। सो it has changed drastically. So from there we can say वो द इंक्रीमेंट विच इज बिन। सो उस बेसिस पे जिन लोगों ने म्यूचुअल फंड में 2008 में 2500 का बेसिक एसआईपी किया रहेगा, एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मंथली 2500 दिया रहेगा, एवरेज रिटर्न सालाना रिटर्न साल का 9.5%। नाउ कनेक्ट दिस विद योर इन्फ्लेशन रेट। आपका इन्फ्लेशन मैंने बताया कि 6.5% 10 ईयर्स में बढ़ा है। नाउ व्हेन यू your cost of living is increasing by 6.5%, सामने 9.5% मिल रहा है, सो 3% के आसपास आपको एक बफर मिल रहा है जहां पे आप कुछ अलग प्लान कर सकते हो। एक्चुअली अलग प्लान नहीं है, दिस बफर इज फॉर योर हेल्थ बेनिफिट्स, दिस बफर इज फॉर योर स्टैंडर्डाइज लिविंग, दिस बफर इज फॉर योर पीस ऑफ माइंड। एक बफर रहता है, वो आपको म्यूचुअल फंड देता है। जिन लोगों ने 2008 में पर मंथ 2500 इन्वेस्ट किया रहेगा, आज की तारीख, आज की मतलब 1 year बैक, ड्यू टू कोविड आई हैव नॉट टेकन दिस सिचुएशन इनटू द कंसिडरेशन, 2019 तक उसके पास अकाउंट में 3,30,000 होते थे, लेकिन एवरेज 9.5% इंटरेस्ट के हिसाब से अगर उसने वेल्थ कंटिन्यूस उठाया नहीं है, उनके उसने रखा ही है, और उसका क्यूमुलेटिव होके 102% होता था, तो उसकी वैल्यू 2019 तक 6,67,188 रुपीज हो जाता था। Now just imagine, at 2,500 we start spending on each and every small we never mind about. फिर जाके जब अभी रिसेंटली कोविड आया, सो वी केम टू नो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ अगर पैसे पड़े रहेंगे एंड हाउ टू मैनेज दिस विद द इन्फ्लेशन। लेकिन अगर वही चीज हम लोग ने उसमें डाले रहते तो अभी हमारे पास 6 lakhs रहते थे। हम लोग ने डाले कितने थे, 3,30,000 डाले थे, मिलेंगे कितने, 6,67,100। वैसे ही जिन्होंने निफ्टी वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया था, उसी टाइम जिन्होंने निफ्टी, मैंने बताया था ना ईटीएफ लेने का, जिन्होंने ईटीएफ ऐसा कुछ ले लिया रहेगा और वन टाइम 30,000 डाल दिया रहेगा, बिकॉज आई एम कैलकुलेटिंग दिस बेस्ड ऑन कि उस टाइम पे आप लोग ने 30,000 ही डाला है पर ईयर बेसिस पे। 1 year में 30,000 डाला, फिर कुछ नहीं डाला, उसका वैल्यू जो डाला था वो उसको आज भी उसने 30,000 ही है, उसने और कुछ डाला नहीं है, लेकिन वो 19% के हिसाब से हुआ था, उसका 209% के हिसाब से उसका 2,38,000 के आसपास हो गया था। वैसे जिन्होंने LIC में किया था, LIC में यू हैव टू कीप ऑन इन्वेस्टिंग ऑन एन्युटी बेसिस, एन्युटी मतलब ईयरली बेसिस पे रहता है। 30,000 किया है, 9% के हिसाब से 46
48% वेल्थ क्रिएटेड है उसको 4,83,377 मिलता है। और जिन्होंने वन टाइम एफडी करके रखी है, एफडी में आज से पहले से 5% से लेके 9% के आसपास मिलता था, आउट ऑफ दैट 5% टू 9% भी अगर आपने 7 महीने एवरेज लिया उसका, आउट ऑफ दैट द अमाउंट इन्वेस्टेड विल बी सेम हो रहे, उस पर 55% मिलके 57,000 हो गए। नाउ टेकिंग इनटू द रिस्क क्या है, इफ यू इन्वेस्ट इन अ म्यूचुअल फंड ना, द म्यूचुअल फंड में रिस्क इज अ वेरी मिनिमम, जबकि रिटर्न उसका कंपेयर टू ज्यादा है। इक्विटी में नो डाउट रिस्क वेल्थ परसेंटेज ऑफ रिटर्न बहुत बड़ा है, लेकिन वो उतना रिस्क भी है। जैसे आई टोल्ड कि एक बार रिलायंस हम लोग ने 30,000 का डाल के रख दिया और कल उठ के पेट्रोलियम इंडस्ट्री बंद हो गई, तो रिलायंस तो पूरा चला जाएगा, उसमें आपका वेल्थ भी चला जाएगा। जबकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपने निफ्टी ले लिया या फिर आपने पूरा बास्केट ले लिया म्यूचुअल फंड में, तो रिलायंस एक नीचे गिरेगा ना, लेकिन अगर टाटा बढ़ा रहेगा ना, तो आपका पोर्टफोलियो मैनेज रहेगा, जिसके कारण आपकी वेल्थ डिटोरिएट नहीं होगी, आपकी वैल्यू ऑफ मनी रिटेन रहेगा वहां पे, इट वोंट गो डाउन टू दैट। और LIC वी नेवर सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मैचिंग द इन्फ्लेशन। LIC और एन्युटी प्लान हमेशा हम लोग है ना रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए करते, कि भाई आज हम लोग 50,000 कमा सकते हैं, कल उठ के हम लोग नहीं कमा पाए, एंड इफ वी नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिटर्न पर मंथ, तो कैसा करेंगे। तो इन दैट वी गो फॉर अ लिस्ट जो सबसे लीस्ट है, लेकिन उसका बेनिफिट आफ्टर 15 ईयर्स आफ्टर 25 ईयर्स मिलता है कि, और वो बीच में से हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन उसका उतना बेनिफिट नहीं मिलता। जबकि म्यूचुअल फंड और इक्विटी में कभी भी निकाल सकते हैं, मोस्ट लिक्विड रहते हैं और उसका ऑन द स्पॉट बेनिफिट मिल जाता है। बैंक एफडी तो एज वी ऑल नो कि कुछ मिलता नहीं, नाम के लिए एफडी, इट इज जस्ट सिक्योर। सो दिस ये सारे डेटा ऑन द पब्लिक डोमेन में अवेलेबल थे ऑन दैट बेसिस ऊपर। सो any question, this was the any question? Hello, any question? Hello. No, fine. Okay. Any doubt? No, I don't have any question. No. Okay, okay. ठीक है, so we will wind up here and next week जो economic reforms का मैंने बात किया, I will be sharing a PPT with you on your mail ID, and जो मैंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का बात किया उस पे वी आर टेकिंग अ सेमिनार, एक्चुअली सेमिनार नहीं है, इट विल बी अ ग्रुप डिस्कशन कि जहाँ पे लेट्स कम एंड शेयर द वैल्यू कि वेदर इट इज गोइंग टू बेनिफिट इन लॉन्ग रन और नॉट, इस पे वी आर प्लानिंग, इफ इंटरेस्टेड लिंक विल बी शेयर टू यू। ओके।